guys, how you doing? This video I'm just going to share you guys about my experience of giving these interviews. Okay, you guys, some tricks which I followed. First of all, one big breakdown to you guys that I am not an air hostess. क्या बात कर रहे हैं? एंड ये सुन के अगर आप लोगों को लगता है कि ये वीडियो नहीं देखना है, दूसरे किसी के वीडियोस देखना है जिसमें दे आर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, कैसे सिलेक्ट हो गए उन लोग एंड एक्सेट्रा, देन यू आर फ्री टू गो. बट before leaving, I want to say that being someone who have given so many of these interviews and being rejected so many times, I got to learn so many things like मुझ में क्या कमियां हैं, what I need to improve, where should I work on myself, and I think this insights will help you a lot if you are a beginner or you are also someone like me. Also मैं ये assume करके चलूँगी कि this video is being watched by a lot of people. Your 12th pass certificate, अगर आपके पास पासपोर्ट है then that's very good, you should carry your passport. Passport size photos carry करना हमेशा, and the most important thing you need is your resume. Okay, and also last thing जो आपको कैरी करना है is your आधार कार्ड, जो फ्रंट एंड बैक साइड का जो कॉपी है आधार कार्ड का एक जेरोक्स निकाल लो. So जो ये 3 डॉक्यूमेंट्स है necessary only if you get selected in that interview. Therefore the most important document is your resume. And मैंने अपना फोटो जो है वो जेरोक्स करके मत निकाल लेना. You always have to paste your passport size photo above that. तो अपना पासपोर्ट साइज फोटो भी कैरी करना, क्योंकि कब क्या लग जाए you never know. And also carry a pen with you. The most important जो कोई नहीं बताता, someone like me who wears specs. And मैं जब इंटरव्यू देने के लिए जाती हूँ, I don't wear my specs. I don't even wear my lenses because I don't have any. No one told me that I have to carry my specs even though I am not wearing them. But luckily मैंने उस दिन कैरी किया था अपना specs, क्योंकि if you are going for Indigo ka interview, there is this test, ICA test. If you are wearing your lens, that's the other case. You don't need to carry your specs. But if you are not wearing your lens, plus if you are not wearing your specs, don't forget to carry them. That's like very important, क्योंकि there is this girl who got selected in the first round, and in the second round जब उसको बोला गया है कि you have to read it out, then she said that ma'am I wear specs and I have not bought my specs, and she was immediately rejected. जो फर्स्ट राउंड होता है इंडिगो का इंटरव्यू, उसमें एक टिप भी मैं शेयर करूँगी. फर्स्ट राउंड में एक कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ थिंग होता है जो ऐसे राउंड करके हर कोई बैठता है. मैक्सिमम 6 to 7 गर्ल्स एक ही साथ जाते हैं. द इंटरव्यूअर गिव वन क्वेश्चन टू द फर्स्ट गर्ल एंड सबको उसी में ही आंसर करना. इफ द इंटरव्यू फील्स लाइक आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चन टू डिफरेंट गर्ल्स, दैट्स अनदर. बट मोस्टली क्या होता है कि एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है एंड हर किसी को सेम ही क्वेश्चन पूछा जाता है. इसमें एक मैं आपके साथ टिप शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जब अपनी फर्स्ट इंटरव्यू देने गई थी तब भी मैंने एकदम लास्ट राउंड तक आई गॉट सिलेक्टेड. तो उसमें क्या हुआ था, द फर्स्ट टाइम आई वेंट एंड आई वॉज नर्वस एंड आई वॉज क्लूलेस कि क्या होगा, मुझे नहीं पता कुछ भी, क्या पूछेंगे. इंटरव्यू का जो आगे का दिन है उसी दिन मुझे पता चला है कि इन माई एरिया, इन माई सिटी देयर इज गोइंग टू बी अ इंटरव्यू. भी गई थी, आई वॉज नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज आई जस्ट वेंट देयर टू चेक वेदर they will select me or not. Select me in the sense scars in my hand, I have scars in my leg, and also you can see my teeth are not like एकदम aligned. एक थोड़ा सा crooked वाला भी teeth है. So I always thought maybe they will not select me. That is why I never went to give any interviews. But my sister, who is a well-wisher of me, of course, she told me कि एक बार तो जा और तू देख के देख कि क्या होता है. I literally had no clue कि कब मेरा हाथ चेक करेगा, कब मेरा पैर चेक करेगा. I didn't even talk to any of the girls there because I was so scared. And जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, तो माहौल ही बहुत ज़्यादा अलग होता है. इट्स लाइक वेरी डिफरेंट एंड यू सी अदर गर्ल्स हु लुक सो प्रिटी, देयर मेकअप इज ऑन पॉइंट, उस लोग का कपड़ा इज ऑन पॉइंट. मुझे क्यों सिले लाइक यू नो कुछ सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं. तो मुझे फर्स्ट डे तो कुछ आया नहीं था, क्योंकि मैं वैसे भी कुछ देखने के लिए गई थी कि विल दे सिलेक्ट मी और नॉट. बट
देन आई वेंट ऑन द फर्स्ट राउंड में मैं बीच में बैठी हुई थी, लाइक देयर वर 3 or 4 girls in my left hand side, 3 or 4 girls in my right hand side. Maybe the question was like, why do you think grooming is important for a cabin crew? सच के सीधा सुंदर देखना क्यों important है? The first girl was answering. जो हर कोई जब आंसर कर रहा था, द वन थिंग विच आई नोटिस इज देयर वॉइस वॉज वेरी लो, दे साउंडेड वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. मैं एज अ व्यूअर ओनली, मतलब उन लोग के साथ मैं भी तो इंटरव्यू देने के लिए आई ही, लाइक द वन हु वाज टेकिंग इंटरव्यू, उनका तो कितना एक्सपीरियंस है, मैं जिसके पास 0 एक्सपीरियंस है, मैं ही सोचने लगी कि अरे इतना लो करके क्यों बात कर रही हो, फिर इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों बात कर रही हो, अगर कुछ आंसर दे रही हो तो बी कॉन्फिडेंट, बी लाउड. सो मैंने उन लोगों का एक ही देखा कि उन लोग बहुत अंडर कॉन्फिडेंटली बोल रहे थे, वेरस मुझे भी कुछ नहीं पता था आंसर वगैरह. आई वाज वेरी नर्वस. सिटिंग ऑन द चेयर इज लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस यू विल गेट. सो आई वाज सिटिंग देयर. मैंने मन में सोचा कि क्या आंसर हो सकता है, एंड आई क्विकली थॉट ऑफ 1-2 पॉइंट्स. एंड जब मेरी बारी आई तो भरती है उस टाइम, आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट फील्स. मैं नम हो गई, लाइक लिटरली आई वॉज नम. आई कुडंट फील एनीथिंग. आई जस्ट न्यू आई हैड टू बी लाउड, आई हैड टू बी कॉन्फिडेंट, दैट्स ऑल आई न्यू. एंड उन्होंने जब पूछा, आई स्टार्टेड लाइक गुड मॉर्निंग मैम. मतलब इतना, मतलब ऑलरेडी मैं इतनी डरी हुई थी. ऊपर से आई जस्ट लाइक ऐसे मैंने डीप ब्रेथ लिया एंड आई वाज लाइक गुड मॉर्निंग मैम, एकदम पूरा लाउड गुड मॉर्निंग मैम करके बोला. तब भी शायद लाइक फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, कुछ होता है ना ऐसा. तो व्हेन आई सेड दैट, मैम थॉट कि मे बी आई वॉज कॉन्फिडेंट. कहीं पे कुछ पॉइंट पढ़ा था शायद, लाइक एयर होस्टेस या फिर कैबिन क्रू जो होता है, दे रिप्रेजेंट द एयरलाइन. तो मैंने बोला एंड मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ था आंसर. गाइस believe me, I was not even done with my answer and she was like okay you can go for the next round. मैंने जब वो लाइन सुना, like I was so shocked. what me, whereas ये जो लोग बैठे हुए थे मेरे से कितने ज़्यादा एक्सपीरियंस थे. ओके सो वो तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं तो हो ही गई, क्योंकि फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट हो गई. एंड ऑल्सो मेरा पर्पस भी था कि मुझे सेकेंड राउंड तक एटलीस्ट आना था, क्योंकि सेकेंड राउंड में आपका ये तो दाग धब्बा, आई का पावर, दांत वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है सेकेंड राउंड में. तो उससे मुझे एक फॉर्म लेना है एंड फॉर्म को मुझे फिल करना है. तो बेसिकली वो फॉर्म में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि आपके पास अगर कुछ बीमार है, इफ़ यू हैव एनी डिजीजेस यू हैव टू टिक डाउन द बॉक्सेस, आपका एडमिटेड पे हो, लाइक वेरी नॉर्मल. देन इज़ योर BMI राउंड. BMI राउंड में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है यू गाइज टू चेक योर वेट एंड हाइट बिफोर यू गो फॉर दैट इंटरव्यू. क्योंकि वंस यू गेट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट राउंड, ऑब्वियसली आपके मन में एक होप आ ही जाता है कि yes I can do it, मैं ये इंटरव्यू क्रैक कर सकती हूँ. बट लाइक रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ योर वेट और हाइट बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है. देख के बुरा लग रहा है ऑब्वियसली, तो सोचो जिनके साथ हुआ है वो, उन लोग को कितना बुरा लगा होगा. तो देयर इज़ माई फ्रेंड, इंटरव्यूज होने से वी गो टुगेदर. सो शी इज़ अंडरवेट. तो उसका क्या प्रॉब्लम है कि हाइट वगैरह एवरीथिंग इज़ फाइन, बट शी इज़ अंडरवेट. तो उसका उस दिन वो कुछ खा के नहीं जाती है इंटरव्यूज़ देने के टाइम, तो उसका वेट और कम हो जाता है. नो, आप अंडरवेट भी हो तो खा के जाओ पूरा फुल हो के, आपका वेट ठीक हो जाएगा. कभी विदाउट हील जो आपको हाइट चाहिए वो ही आपको होना चाहिए. जस्ट रिजेक्टिव. आई हैव इवन सीन अ गर्ल, शी गॉट रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हर हाइट. एंड बिलीव मी, हर इंग्लिश and everything, she was very confident, her English was fluent, she got selected with me only, and then she got rejected because of her height. And all obviously we feel bad. ऐसा कुछ किसी के साथ भी होता है ना. तो जब आप इंटरव्यूज देने के लिए जाती हो ना, तो हर कोई लड़की के बीच में व्हेन यू टॉक टू समवन, अलग काइंड ऑफ फ्रेंडशिप क्रिएट हो जाता है. एंड ऐसा नहीं है कि हर कोई किसी से जेलस वगैरह यूज देने के लिए. दे आर सो फ्रेंडली, दे आर सो नाइस, लाइक दे आर रेडी टू हेल्प यू इन एनी थिंग. लाइक कुछ लड़कियाँ होता है जो जेलस या फिर अक्रू काइंड ऑफ थोड़ा सा रूड या फिर ऐसा कुछ होता है. लेकिन नॉर्मली मोस्टली जो गर्ल्स जाते हैं, लाइक दे आर वेरी फ्रेंडली. लड़की से लाइक बात किया था
it was her like 10th या 11th time of giving the interview. मेरा जो first time था तब उसका 10th time था, तब तक उसने give up नहीं किया था. तो I think yeah, the main thing which I have learned also there is never to give up. Never to give up on your dreams. अगर कुछ चाहिए तो एक बार हो जाए, 10 बार हो जाए, 20 बार हो जाए, आप देते रहो. One day you will get selected. And guess what? That girl, she got selected that day. So second round में वो सब कुछ होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपका सेकेंड राउंड में क्या क्या होता है? बेसिकली आपको जो फॉर्म दिया जाता है वो फिलअप करना होता है. देन शी काउंट्स योर BMI इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ योर हाइट एंड वेट से जो आपका नॉर्मल आई चेकअप में, यू नो इफ़ यू हैव एवर गॉन टू एन आई चेकअप, आपको नॉर्मली जो ABCD लिखा हुआ है बड़ा लेटर छोटा छोटा करके वो पढ़ने के लिए देते हैं. देन देयर इज दिस बुक विथ लॉट्स ऑफ कलर, बट वहाँ पे सब कुछ नंबर्स होते हैं, बट देयर इज लॉट ऑफ कलर. सेकेंड राउंड में मोस्टली कोई फील्ड नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस आपका वेट एंड हाइट का कुछ गड़बड़ होता है. इसमें भी आपको जो स्लीव्स वगैरह होते हैं उसको उठा के आपको दिखाना पड़ता है. शी एक्चुअली चेक माई टीथ, मैं भूल गई थी आपको बोलना, जिसके लिए मैं आई थी इन दैट इंटरव्यू, क्योंकि मुझे इनसिक्योर मतलब मुझे लगा था कि नहीं सिलेक्ट करेंगे. उसने बोला कि अपना दांत दिखाओ, मैंने दांत दिखाया एंड शी टोल्ड मी दैट ओह योर टीथ इज अ बिट crooked एंड आई सेड या. देन शी सेड नो प्रॉब्लम, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे करके बोला था. पता नहीं, मे बी हाँ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम होता तो रिजेक्ट ही कर देते. देन मेरा हाथ चेक किया, उनको कुछ दाग नहीं दिखाई दिया. मे बी आई वॉज टू गुड हाइडिंग दैम, और मे बी इतना बड़ा भी दाग नहीं है कि मुझे इतना इनसिक्योर हो रहा था, इतना भी बड़ा दाग भी नहीं था. एंड हम लोग का इधर, मैं गुवाहाटी पे देती हूँ मेनली, तो इधर लेग्स का इतना चेक नहीं करते हैं उन लोग. इन द थर्ड राउंड इज योर वीडियो कॉन्फ्रेंस राउंड, जिसमें आपको एक इधर लैपटॉप इधर फ़ोन के आपको पकड़ाया जाएगा. एंड इधर पे भी एक नया इंटरव्यूअर होगा जो आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट माई फर्स्ट एक्सपीरियंसेस, तो मैं भी वही शेयर करूँगी आपके साथ. मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस में क्या हुआ था, दिस 4 गर्ल्स वेर सिटिंग ऑन दिस लाइक डेस्क, लैपटॉप आ रहा था और मैं एकदम लास्ट में बैठी हुई थी. तो हर किसी को बहुत लाइक लिटरली बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक क्या कर रही हो, क्यों तुमको एयर होस्टेस बनना है. एंड आई वाज लाइक हाँ पूछिए, क्या ही पूछ लेंगे कि मुझे नहीं पता होगा अपने बारे में. मैं तो एकदम कॉन्फिडेंट फर्स्ट राउंड क्लियर करके कि हाँ भी कुछ भी पूछ लो मैं तो बता ही दूंगी. एंड रुको जरा सबर करो अपने आप को. मुझे बोलना चाहिए था कि फटी तो तब भी थी बहुत ज़्यादा. फिर मैं लैपटॉप ली. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ सुननाई भी नहीं दे रहा था कि वो इंटरव्यूअर क्या बोल रहा था. तो आई वॉज ट्राइंग टू लाइक यू नो जो मैंने फर्स्ट राउंड में किया था, आई वॉज ट्राइंग टू बी वेरी लाइक कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग, बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. एंड आई वॉज लिसनिंग है व्हाट ऐसे कान नीचे करके मुझे सुनना पड़ा. एंड मैंने तो तब भी सोचा कि क्या ही मतलब क्या इम्प्रेशन दिया है मैंने. देन जो पार्ट से मैं कॉन्फिडेंट थी क्वेश्चन से कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे मैं तो टैकल कर लूँगी. गेस व्हाट क्वेश्चन ही हैव आस्क्ड मी. उन्होंने पूछा मुझे व्हाट डू यू प्रेफर, अ जेल पेन, अ बॉल पेन और अ फाउंटेन पेन. एंड आई वाज लाइक मेरी तो जो फटी हुई थी तब तो मैं मतलब क्या ही बोलूं. तभी आई डिडंट लूज माई होप. एक्चुअली मैंने अपने आप को फिर से गैदर किया, क्या बोलते हैं, I forgot the word, and I was like no, I have to give him some answer dude, I cannot just keep quiet. and मेरा वही होता है कि मैं चुप नहीं रहती, मैं थोड़ी सी से सोचती हूँ एंड मैं कुछ तो बोलती ही हूँ. पता था मुझे अभी भी ऑब्वियसली मुझे कुछ भी याद नहीं है. तो इन दिस राउंड ना इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर लक, आपको कैसा इंटरव्यू मिलता है. मेरे लाइक आगे तक ये जो आदमी है इसके आगे तक एक औरत इंटरव्यू ले रही थी. एंड शी वॉज सो स्वीट एंड शी वॉज आस्किंग वेरी लाइट क्वेश्चन. मुझे पता नहीं अभी तक मैंने जितना भी दिया मेरा मतलब एक जो ये लिखा हुआ है ना इसमें बहुत गंदा करके कुछ लिखा हुआ है, शायद मेरा इधर है ही नहीं मतलब कि अच्छा एक इंटरव्यूअर मिले. क्योंकि और बार ऐसा हुआ था कि बहुत द मैन वॉज सो ग्रेट, मतलब वो जो इंसान इंटरव्यू ले रहा था वो इट वॉज सच अ ग्रेट इंसान. लाइक वो इवन बोल भी रहा था कि तुम्हें क्या क्या कमी है
तुम्हें क्या क्या कमी है, व्हाट यू शुड इम्प्रूव. ही वॉज गिविंग टिप्स ऑल्सो. वो आदमी चला गया. वो लड़के का क्या हुआ था कि शी वॉज सिटिंग देयर एंड ही लाइक वेरी सॉफ्टली, वेरी नॉर्मली ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हर एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग एंड मैं उसके साइड में बैठी हुई थी. नेक्स्ट मेरा टर्न था, मेरा खुद का फटा हुआ था एंड आई वाज लाइक डू नॉट क्राई, इट्स ओके, इट्स फाइन. खराब भी लगता है ना. वो इतनी रोई थी लाइक मैं क्या ही बोलूँ. एंड उसके बाद से वो सीन क्रिएट हो गया था ना. तो उस इंटरव्यू ने बोला कि आई हैव सम वर्क टू डू और आएगा अभी इंटरव्यू लेने के लिए. मेरे टाइम से कोई और आ गया एंड मुझे पता भी नहीं था वो जो और था वो क्या कैसा क्वेश्चन पूछेगा. वेरी मच ये जो इंटरव्यूज़ होता है ना, वेरी मच डिपेंड्स ऑन योर लक. आई डोंट वांट टू बी वेरी स्वीट ऐसा करके कि हाँ हो जाएगा सब कुछ बहुत अच्छा होता है. नहीं, बहुत लक के भी में भी डिपेंड करता है. लेकिन थर्ड राउंड फिर फोर्थ राउंड में आपका 101 कॉन्वर्सेशन होता है. जो इंटरव्यूअर होता है वो फाइनल इंटरव्यूअर होता है. जो आपका फर्स्ट राउंड होता है उसमें आपको जो आंसर रखना है बहुत शॉर्ट रखना है, बहुत क्रिप्स Eternity later. जो शॉर्ट एंड क्रिस्प Many months later. क्रिस्प, हाँ वो रखना है. एंड जो लास्ट राउंड होता है उसमें आपको बहुत खींचना होता है. कन्वर्सेशन को जितना चाहे आप खींचो. इफ़ द इंटरव्यूअर इज कम्युनिकेटिंग विथ यू, इफ़ शी इज़ आस्किंग यू क्वेश्चन, आप जो बोल रहे हो उसमें अगर वो क्वेश्चन पूछ रही है तो देन यू शुड नो दैट यू आर क्रिएटिंग अ गुड इम्प्रेशन. क्योंकि मेरे साइड में जो बैठी हुई थी, मैंने जो बोला था बहुत दिनों का एक्सपीरियंस लेके, उसके साथ मैंने बहुत कन्वर्सेशन किया. उसके लाइफ के बारे में पूछा मतलब वो जो भी बोल रही थी कि उसमें भी क्वेश्चंस मैम पूछ रही थी. वो फोर्थ राउंड के आगे मेरी इतनी फट गई थी लाइक, क्योंकि मैं आई वॉज डूइंग माई कॉलेज ऑब्वियसली एंड इफ़ आई गेट एंड आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड टू लाइक क्रैक दिस इंटरव्यू. मैं उसके लिए आई ही नहीं थी. लाइक मैं जॉब पर्पज़ के लिए आई नहीं थी. आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि इफ़ मैं अगर कभी करना चाहती हूँ तो विल आई गेट सिलेक्टेड, इसीलिए आई थी. टॉक टू सम पीपल एंड एवरीवन वाज लाइक तुम बहुत अच्छी कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम ऐसे कर रही हो. मतलब वो बातें सुन के आई वॉज सो ओवरवेल्म्ड. और उसी टाइम आई गॉट सो नर्वस लाइक व्हाट इफ़ आई गॉट सिलेक्टेड इन दिस इंटरव्यू. मेरा तो लाइफ कम्प्लीटली 160 डिग्री 360 डिग्री टर्न हो जाएगा. क्योंकि मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, मुझे नया सिटी मूव इन करना पड़ेगा. व्हाट अबाउट द ड्रीम्स, मतलब क्या, मतलब मैं इतनी नर्वस हो गई थी ना फ्यूचर का टेंशन लेके. वो मुझे एक्चुअली फोर्थ राउंड के बाद सोचना चाहिए था. मैं बेवकूफ़, मैं आगे ही टेंशन ले लिया इतना. तो मैं उस इंटरव्यू लास्ट राउंड में मैंने हक दिया. मतलब मुझे पूछा गया था टेल मी समथिंग अबाउट योर होम टाउन एंड आई अभी तक जितना भी मैंने बोला, ये पेन वाला क्वेश्चन ही क्यों ना हो जिसमें मुझे आंसर भी नहीं पता, उसमें भी मैंने फंबल नहीं किया. एक बार मैंने बोला, मतलब स्टार्टिंग में मैंने ठीक बोला बट बीच में आई वॉज सो टेंस्ड एंड सो नर्वस, आई फंबल्ड एंड शी वॉज नॉट सो इंटरेस्टेड इन मतलब और कन्वर्सेशन. मतलब शी वॉज ट्राइंग बट मैं चांस नहीं दे रही थी कि मैं और कुछ लंबा बोलूँ, कुछ करूँ. शी वॉज ट्राइंग टू हैव अ कम्युनिकेशन बट मैंने इतना शॉर्ट आंसर्स दिया कि वो क्या ही पूछेगी. तो मैंने ही अपनी ही पैर में कुल्हाड़ी मार दिया. जब मैंने फंबल किया ना, तभी मुझे पता चला है कि हाँ मैं निकल गई हूँ, अभी मैं नहीं सिलेक्ट होंगी. इसमें लाइक बिलीव मी, स्टार्टिंग में 500-600 ऐसा करके स्टूडेंट्स लाइक इंटरव्यू देने के लिए गर्ल्स गए थे एंड लास्ट तक लाइक देयर वर वेरी फ्यू गर्ल्स, लाइक 20 ऑफ us were there in that room. तो हाँ, मुझे जब इंटरव्यू में लाइक फोर्थ राउंड में जब दे रही थी तब भी मुझे पता चला कि नो, आई एम नॉट गेटिंग सिलेक्टेड इन दिस राउंड बिकॉज ऑब्वियसली आई फंबल एंड ऑल्सो आई एम नॉट रेडी फॉर लाइक दिस लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस. मैं अपने आप को रेडी करके मुझे जाना चाहिए था. मुझे क्या पता था कि फर्स्ट राउंड में मैंने इतना सारा क्लियर कर दूंगी जोश में. एक्चुअली अच्छा ही हुआ मैं सिलेक्ट नहीं हो गई थी, क्योंकि इफ़ आई गॉट सिलेक्टेड, मैं शायद जॉब अगर नहीं लेती तो मैं शायद किसी और का सपने का जो ड्रीम है ना वो खा जाती. तो बाकी मेरा एक्सपीरियंस बोलूँगी कि कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ बहुत अनफेयर हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा मुझे बहुत बार लगा है. आई थिंक द वीडियो इज़ ऑलरेडी गेटिंग टू मच लॉन्ग, तो मैं और लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू गाइज अबाउट माई एयर इंडिया का एक्सपीरियंस. उसका भी अगर वीडियो चाहिए तो डू कमेंट डाउन बिलो. एंड आई एम प्रिटेंडिंग कि ये बहुत सारा लोग देख रहे हैं. सो यहीं पे मैं एक टिप देना चाहती हूँ, आपको एक टिप्पणी देना चाहती हूँ. जो आपका फर्स्ट राउंड है ना,
मैं जो बोल रही हूँ कि ऐसा करके लड़के लोग ऐसा करके बैठते हैं और इंटरव्यू, फॉर एग्जाम्पल आई एम द इंटरव्यू एंड ऐसे करके लड़कियाँ लोग बैठे हैं। डोंट एवर सिट ऑन दिस कॉर्नर नॉट दिस कॉर्नर, एकदम लास्ट या फर्स्ट में कभी मत बैठो, हमेशा मिडिल में बैठो। क्या फ़ायदा होता है, मैं क्यों हमेशा मिडिल में बैठती हूँ, क्योंकि फर्स्ट आपको पता चल जाता है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस यू ऑलरेडी नो द क्वेश्चन, तो यू गेट एनफ टाइम कि प्रिपेयर कर लो कि थोड़े पॉइंट्स क्या क्या मैं बोल सकती हूँ। सेकेंडली आप लास्ट तक मत बैठो, क्योंकि आपका जो पॉइंट्स होंगे ना हर कोई बोल ही जाएगा, तो लास्ट तक आपका कुछ आपके पास स्पेशल पॉइंट्स नहीं होगा जो आप एक्स्ट्रा से बोल सकते हैं। तो लास्ट में भी मत बैठो, फर्स्ट में भी मत बैठो, मिडिल में बैठो। मिडिल में बैठो, क्वेश्चन सुनो, प्रिपेयर कर लो, फिर अच्छे से आंसर दो। सेकंड टिप्पणी जो मैं देना चाहती हूँ इस कि बी लाउड। कॉन्फिडेंट कौन ही होता, कॉन्फिडेंट आप हो ना हो बाहर में जाए, बी लाउड, जितना हो सके अपना वॉइस लाउड करो, लाउडली बोलो, एकदम अंदर से वॉइस लाओ और लाउडली बोलो। इट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि देखो हर कोई नर्वस होता है, कौन ऐसा है कि जो नर्वस नहीं है। वी आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, ऑब्वियसली इट्स नॉर्मल फॉर एवरीवन टू बी नर्वस, बट व्हाट विल मेक यू स्टैंड आउट ऑफ एवरीवन इज यू बीइंग कॉन्फिडेंट, यू बीइंग लाउड। अंदर कॉन्फिडेंस ना भी हो तो ऐसे दिखाओ कि कॉन्फिडेंस है भाई मुझ में, बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छे से बोलती हूँ मैं, ऐसा दिखाओ। इंटरव्यूअर ऐसे ही इम्प्रेस हो जाएगा। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आप अच्छे से आंसर दोगे तब भी दे वांट एक्चुअली समथिंग वेरी यूनिक, समथिंग वेरी लाइक जो किसी ने ना बोला होगा। एकदम नॉर्मल आंसर तो हर कोई देता है, तो वो उन लोग चाहते हैं। तो अगर आप वो कर पाए तो दैट्स लाइक वेरी चेरी ऑन द टॉप। एंड ऊपर से आप कॉन्फिडेंट हो, ऊपर से आप अच्छे से बोल पाते हो, तो उन लोगों को क्या ही चाहिए इन द इंटरव्यूज़। एंड व्हाट इफ़ यू वर इन द इंटरव्यू, आप इंटरव्यू के प्लेस में होते तो क्या आप अपने आप को सिलेक्ट करते, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो। इट विल हेल्प यू अ लॉट टू improve yourself in the fields which you may not ever, कि आप कच्चे हो। सो या एंड कभी भी इतना ऐसा मत रहो कि मेरे में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एकदम परफेक्ट हूँ इस इंटरव्यू के लिए, फिर भी मुझे सिलेक्ट नहीं किया। ऐसा कभी ऐसा एक्सपेक्ट मत बना के रखो। सो वंडरिंग मैंने इतना प्यारा ज्वेलरी नेकलेस तो मैंने उतार दिया है, कहाँ से परचेज़ किया है, तो यू कैन गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।